नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। जलपाईगुड़ी के एक नर्सिंग होम में कोरोना संक्रमित पाए जाने से किया इनकार। खबर है कि जलपाईगुड़ी शहर के गैर सरकारी नर्सिंग होम में एक व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब यह व्यक्ति इस अस्पताल में भर्ती था उस समय कोरोना पॉजिटिव नहीं था और जब उसको सिलीगुड़ी स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया उस समय वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसलिए इस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। चिकित्सा का काम स्वाभाविक रूप से चल रहा है। अस्पताल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुजय रॉय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई संक्रमित नहीं पाया गया है। कोविड-19 के लिए नियुक्त ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी सुशांत रॉय ने बताया कि बुधवार को जलपाईगुड़ी में कोई भी कोरोना का नया संक्रमण का मामला नहीं आया है। उन्होंने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और काफी संख्या में मरीज अस्पताल से ठीक होकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि लोग सतर्क रहे। সুজয় রায় জলপাইগুড়ি মেরিনা মেডিকেল সেন্টারের পিআরও। গত 2 তারিখ জলপাইগুড়ি নিউটাউন পাড়ার এক বয়স্কা মহিলা 84 বছর বয়সের বয়স্কা মহিলা আমাদের নার্সিংহোমে এসে ভর্তি হন। ওনার কোমরে চোট লেগেছিল এবং গত 12 তারিখ ওনাকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়। বেসরকারিভাবে গত 15 তারিখ আমাদের কাছে খবর আসে উনি কোভিড-19 পজিটিভ। এরপর জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসকরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের নির্দেশে পেশেন্টের সাথে চিকিৎসার সাথে যুক্ত যে সকল ডাক্তারবাবুরা এবং যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা ছিলেন তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। এরপর গতকাল জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এবং শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি মহাশয়ের উপস্থিতিতে আমাদের নার্সিংহোমকে স্যানিটাইজ করা হয়। যদিও আমরা প্রতিনিয়ত 3 বেলা করে নার্সিংহোমকে স্যানিটাইজ করে থাকি, জলপাইগুড়িবাসীর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা আমাদের সকল পরিষেবা যেভাবে আমাদের চালু ছিল ঠিক সেভাবে চালু রেখেছি এখন অবধি এবং সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সকল জলপাইগুড়িবাসীর কাছে অনুরোধ করব আপনারা আতঙ্কিত হবেন না। আজকে এই যে করোনা ভাইরাস, এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের সবাইকে হাতে হাত মিলিয়েই লড়তে হবে। জলপাইগুড়িতে জায়গাটা খুব পরিষ্কার। আমাদের কিউমুলেটিভ যা আজ পর্যন্ত হয়েছে 226 জন। আমি জানি না কোথা থেকে কে কি নিউজ পাচ্ছে, আমার কাছে তথ্য আছে হাতে। জলপাইগুড়ির এই মুহূর্তে যেটা পিকচার সেটা টোটাল পজিটিভ কেস আমাদের 226। আমাদের এখান থেকে ভালো হয়ে চলে গেছেন 123। তার মানে এটা 55-56% ভালো হয়ে চলে গেছেন। অ্যাক্টিভ কেস এই মুহূর্তে 12টার সময়, 12টার খবরটা বলছি, এটা 106 জন আমাদের এখন মানে অ্যাক্টিভ কেস আছেন। তাদের মধ্যে আজকে নেই করেও প্রায় 18-19 জন মতন ডিসচার্জ হবেন, এটা আমরা আশা রাখছি। সুতরাং এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি যথেষ্ট ভালো জায়গায় আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। আপনাদের বলেছিলাম আমরা সেফ হোম যাচ্ছি, আগামীকাল থেকে আমরা সেই সেফ হোমগুলো একটা খুলব। তো অ্যাসিমটমেটিক পজিটিভ কেসগুলোকে আমরা সেখানে রাখবো জাস্ট কোয়ারেন্টাইন করার জন্য। আর এখানে আমরা যেটা মূলত ভাবছি সেটা হচ্ছে যে সিমটমেটিক কেসদের জন্য রাখতে চাইছি, যাতে সিমটমেটিক অ্যাসিমটমেটিক মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়। অ্যাসিমটমেটিকরা আবার সিমটমেটিক কাছ থেকে ইনফেক্টেড হবে, সেটা যাতে না হয় সেখানেও আমরা খুব নজর রাখছি। আমরা বলছি না যে এই রোগটা নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ভেবে চলেছি, প্রতিনিয়ত চিন্তাভাবনা হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে। সেই হিসেবে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের বাইরে থেকে লোক আসা এখন প্রায় কমে গেছে, আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। আপডেট নেই। আমাকে মেয়ে নার্সিংহোমের প্রোপাইটার আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় বলেছি দেখো নার্সিংহোম বন্ধ করা ঠিক নয়, যে ঘরটাতে হয়েছে করার দরকারও নেই, যে সেই ঘরটাকে কোয়ারেন্টাইন করো। ওই পেশেন্টের যে রাস্তাটা ছিল সেই জায়গাগুলোকে টোটালটাই তোমরা স্যানিটাইজ করো। ওনারা করেছেন। সুতরাং আর ওখানকার যারা চিকিৎসক আছেন তাদের ওনারা নিজেরাই টেস্ট করেছে। একটু আগে আমি খবর পেলাম, রিপোর্ট আমি জানি না কী হয়েছে, রিপোর্ট আসেনি, সময় লাগবে। সেগুলো অলরেডি আমাদের নজরে আছে। আমাদের যা যা করবে আমরা সব কিছু। একটাই কথা বলবো, সে প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, দয়া করে এখন 3-4টে জিনিস যোগ হবে। একটা হচ্ছে যে মাস্ক পরা, ডিস্টেন্স মেনটেন করুন, হাতে সাবান দিন ভালো করে, যখন বাড়িতে যখন ঢুকবেন যেগুলো এক্সপোজড পার্ট থাকে, মুখ, ঘাড়, পিঠ, হাত পা যেগুলো থাকে সেগুলো ভালো করে সাবান দিয়ে ধুন। আমি কিন্তু ধুই রোজ, এটা বারবার বলছি। আমি যতবারই বাড়িতে 2বার করে ঢুকি 2বারই কিন্তু আমি এই জিনিসটা করি সাবান দিয়ে, সেটা করতেই হবে। আর ডিস্টেন্সটা খুব ভালো করে মেনটেন করুন, কারণ অ্যাসিমটমেটিক কেস তো থাকবেই।
সেগুলোকে নিয়ে আমি আপনি কিছুই জানি না। আর গুজব রটাবেন না, আইন নিজের হাতে নেবেন না। গত দুদিন ধরে আমরা খুব লক্ষ্য করতে পারছি যে কিছু কিছু জায়গায়, কালকে রাত্রিবেলাতেও আপনারা শুনেছেন, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, বেলাকোবা হসপিটালের সামনে একটা খুব গন্ডগোল হয়েছিল। আমরা এখান থেকে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে সেটা করেছি। মাঝে মাঝে কেউ না কেউ একটা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে মানুষ কন্টেনমেন্ট জোনে একটা সমস্যা হয়েছিল। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। সমাজ থেকে নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি, স্বাস্থ্যকর্মীরা সবাই, আপনারা প্রেস, পুলিশ সবাই কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করি। 4 মাস ধরে কিন্তু আমাদের বাড়িঘর নেই। সুতরাং সেখানে যদি কিছু মানুষের খামখেয়ালিপনাতে যদি সমাজে কোনো একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এবং আমি পুলিশ প্রশাসনকেও বলেছি যে কড়া হাতে এটা দমন করতে হবে, এটা বাড়তে দেওয়া যাবে। राहत की खबर। बंगाल में एक दिन में 505 लोग हुए ठीक। अब तक 6,533 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पश्चिम बंगाल में उछाल मारते कोरोना संक्रमण के बीच एक बड़ी खुशखबरी भी है। मरीजों के ठीक होने की रफ्तार यानी रिकवरी रेट बढ़ गई है। अब यहाँ रिकवरी रेट 50.61% से बढ़कर 53.11% पर पहुंच गया है, जो बेहतर संकेत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 505 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 6,533 मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 391 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले 3 दिनों से 1,213 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौतें भी हुई है। वहीं अब तक बंगाल में 506 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 5,515 से घटकर 5,261 हो गई है। यानी स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या संक्रमित रोगियों से अधिक हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 12,881 नए मामले सामने, 334 लोगों की गई जान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 12,881 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 334 लोगों की मौतें हुई है। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,66,946 हो गई है, जिसमें 1,60,384 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 1,94,325 ठीक, डिस्चार्ज या विस्थापित मामले हैं और 12,234 मौतें शामिल है। चीन का भड़काऊ बयान, कहा सीमा विवाद पर पाकिस्तान व नेपाल भी खोल सकते हैं सैन्य मोर्चा। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि यदि सीमा पर तनाव जारी रहता है तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उसके इस भड़काऊ बयान से नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय तनाव बढ़ने की प्रबल आशंका है। शंघाई अकादमी ऑफ सोशल साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के शोध सहयोगी हु जियोंग का हवाला देते हुए समाचार पत्र में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि भारत एक ही समय में चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद में लगा हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान चीन का एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। इसके साथ ही नेपाल से भी चीन के साथ घनिष्ठ संबंध है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही चीन प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत महत्वपूर्ण साझेदार है। मुखपत्र में कहा गया है कि अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो वह 2 या 2 से अधिक मोर्चे पर सैन्य दबाव का सामना कर सकता है। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच आज होगी मेजर जनरल स्तर की बातचीत। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ खूनी झड़प में 20 जवानों की शहादत पर देश भर में गुस्से का माहौल है। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भरोसा देते हुए चीन को आगाह किया कि चाहे कोई भी हालत हो, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। भारत को उकसाने पर हर हाल में चीन को निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों की यहाँ बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत, निर्विरोध जीता चुनाव। भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। निर्विरोध चुने जाने के बाद अब भारत 2021 व 22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था। बता दें कि भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब 8वीं बार यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। दुनिया में अब तक
84.06 लोग हो चुके हैं कोविड-19 से संक्रमित। अमेरिका में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,51,387 लोगों की मौतें हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 83,06,083 हो गया है। अब तक 40,15,833 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि देश में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना, ओक्लाहोमा जैसे कई राज्यों में संक्रमण के मामले दोबारा बढ़े हैं। देश में अभी 1.19 लाख लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 22.34 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के 2 शहीद जवानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी ममता सरकार। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए बंगाल के 2 जवानों के परिवारों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के राजेश ओराव और अलीपुरद्वार जिले के विपुल रॉय समेत 20 भारतीय शहीद हुए हैं। भारत चीन को देगा मुंहतोड़ जवाब, शुरू की गई तैयारियां। सैन्य टुकड़ियों की वापसी पर रोक, छुट्टियां भी रद्द, सीमा के गांव कराए जाएंगे खाली। लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेह और आसपास की सीमाओं पर सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख में तैनात सेना की जिन यूनिट्स की पीस स्टेशन की और वापसी होनी थी, उन्हें वहीं रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। कश्मीर के विभिन्न इलाकों में तैनात सेना की यूनिटों को भी अग्रिम मोर्चे की ओर रवाना किया गया है। साथ ही लद्दाख के आसपास के इलाकों में तैनात दूसरी यूनिट्स को भी मूवमेंट के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द की जा चुकी है। साथ ही सभी जवानों को स्पष्ट निर्देश है कि मोर्चे और तैनाती संबंधी जानकारी किसी से भी साझा नहीं किया जाए। यहां तक कि पारिवारिक सदस्यों से भी इस संबंध में कोई चर्चा न करने की हिदायत दी गई है। हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। तीनों सेनाओं का अलर्ट रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया गया। 3500 किलोमीटर की चीन सीमा पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। चीन की बर्बरता के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस ने किया भाजपा नेताओं को गिरफ्तार। धोखे से और बर्बरता के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाले चीन के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोग में भी भारी रोष है। धोखेबाज चीन के प्रति इतना गुस्सा फूट पड़ा है, शहर के विभिन्न स्थानों पर चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन दौर चल रहा है। सिलीगुड़ी के विभिन्न स्थानों के अलावा चंपासड़ी अंचल, नक्सलबाड़ी, बागडोगरा आदि इलाकों में विरोध प्रदर्शन के दौरान चीन हाय हाय के नारे लगाए गए। इन सभी स्थानों पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया। इस क्रम में भाजपा की ओर से भी शहर के हाशमी चौक में कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया। लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए पुलिस ने 20 नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार रास्ते को बाधित कर पुतला जलाया जा रहा था, इसलिए समर्थकों को गिरफ्तार किया गया।
जलपाईगुड़ी के जिला सभापति बापी गोस्वामी को रिहा कराने के लिए पहुंचे सांसद जयंत कुमार रॉय के साथ हुई बदसलूकी। चीन के साथ सीमा पर हुई हिंसा के विरोध में बुधवार को भाजपा जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया जा रहा था। उसी समय जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने बीजेपी जलपाईगुड़ी के जिला सभापति बापी गोस्वामी सहित कुछ समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार अपने समर्थकों को लेकर थाना पहुंचे और उनको रिहा कराने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस के इनकार करने पर उन्होंने थाना के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद काफी उत्तेजना का माहौल देखा गया। इसकी सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर डीएसपी प्रदीप सरकार, आईसी विश्वेश्वर राय सरकार मौके पर पहुंचे और सांसद से इस संबंध में बातचीत की। যে এক্ষুনি আমি বলেছিলাম, কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম, প্রায় 20-25 মিনিট হয়ে গেল, আধা ঘন্টা হয়ে গেল, আমি বললাম যে আপনারা এক্ষুনি আইসি সাহেব আসুন, আমার সাথে কথা বলুন এবং এদেরকে রিলিজ করুন। তো তারা বলছে যে এক্ষুনি আসবে, এই 10 মিনিট 15 মিনিট করে এখানে ওনার সময় কাটাচ্ছেন। এবার আমি ওখানে বসে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ছাড়ছে না, আমাদের লোকদের যতক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ছে না ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকবো। उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलीपुरद्वार में भी इसी प्रकार से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कल के रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीपुरद्वार में 28 नए कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। इससे कुल संक्रमितों की संख्या 106 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी को तापसी खाता कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें से एक व्यक्ति अलीपुर शहर का है, जबकि अन्य सभी जिले के विभिन्न इलाकों के हैं। आपको बता दें कि जब से प्रवासी श्रमिकों का आगमन उत्तर बंगाल में शुरू हुआ है, तब से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों पर किए गए हमले में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना के खिलाफ बुधवार रात भाजपा युवा मोर्चा भाजयुमो की ओर से मोमबत्ती रैली निकाली गई। युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्याम प्रसाद के नेतृत्व में जलपाईगुड़ी के डीसीपी रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय से मोमबत्ती रैली शुरू हुई। दूसरी ओर मोमबत्ती रैली निकाली जाने की खबर मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर रैली को बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोमबत्ती लेकर सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। करीब आधे घंटे तक युवा मोर्चा का प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने एवं चीन के दलालों से होशियार रहने के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जवान शहीद হয়েছেন, কিন্তু চীনা সেনাকে তারা ভিতরে ঢুকতে দেননি। আমাদের সেনারা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছেন। আমাদের 20 জন প্রাণ দিয়েছেন বটে, কিন্তু 40 জন 50 জন চীনা সেনাকে হত করেছেন। তারা মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তারা কোনো মতে পিছু পা হননি। এই শহীদ জওয়ানদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আমরা রাস্তায় আজকে এসেছিলাম। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা রাস্তায় নেমেছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আমাদের সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রাস্তায় মোমবাতির মৌন মিছিল করতে দেয়নি। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।